سامنے سے عہد یتیم کی کتاب میں سے دانیال اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 7 آیات نکالیے گا۔ پرانے عہد نامے میں سے دانیال Daniel, the book of Daniel, chapter 3, first 3 verses from the Old Testament we'll study. اور میں سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انٹروڈکشن جو بات آج ہم سیکھیں گے، خدا کے 3 ایسے بہترین خادمین کے بارے میں آج ہم سیکھنے کو ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے ناموں سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن ان کی اس قربت کو جو کہ انہوں نے خدا کے ساتھ رکھی اور اس ایمان کو آج ہم دیکھیں گے کہ جو کہ اس قدر مضبوط تھا کہ ان کا ایمان جب وہ آگ کی بٹی میں کہ ڈالیں گے تب بھی ان کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوا۔ میرے ساتھ مل کر دانیال اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 7 آیات دیکھیں گے۔ جس کسی کو خدا کا وہ بارے آزادی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، تو سب غور سے سنیے گا۔ نبوکدنصر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورار کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ تب نبوکدنصر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصب داروں کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکدنصر بادشاہ نے نصب کیا ہے۔ تب ناظم اور حاکم اور سردار اور قاضی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور صوبوں کے تمام منصب دار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکدنصر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے، اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکدنصر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لوگوں، اے امتوں، اے مختلف زبانیں بولنے والوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور باب اور بربط اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے کس کو نبوکدنصر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور حکومتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکدنصر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ پس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودا پر الزام لگایا۔ انہوں نے نبوکدنصر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہے، اے بادشاہ تو نے یہ فرمان کہ کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اور جو کوئی نہ سجدہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ آمین۔ ہم نے یہ سن لیا ہے کہ پہلی جو 7 آیات ان میں واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اگر اس چیپٹر کے آگے ہم بڑھتے ہیں تو آگے 3 لوگوں کا ذکر آئے گا۔ کتنے لوگوں کا؟ 3 لوگوں کا۔ 3 لوگوں کا ذکر آئے گا جنہوں نے کیا ہے کہ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی وہاں اس ملک کے لوگ تھے، یہ حکم جاری کر دیا گیا اور کیا بیان کیا گیا کہ جو کہے کہ سجدہ نہیں کرے گا اسے کون سی بٹی میں ڈال دیا جائے گا؟ آگ کی جلتی بٹی میں۔ صرف آگ کی بٹی نہیں، آگ کی جلتی بٹی، بٹی کے اندر آگ کو کہہ کے جلا دیا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا لوگوں کو کہ یہ وہ بٹی ہے جب کہہ کہ آپ سب کو آواز سنائی دے، ہر طرح کے سازوں کی آواز، جیسے کہ ہم پرستی کرتے ہیں اور کہے کہ خدا کہے کہ اس پرستی کو سن کر کہے کہ آسمان سے نیچے اتر کر اپنے لوگوں میں آ جاتا ہے۔ کس کس کا ایمان ہے کہ خدا یہاں پہ موجود ہے؟ سب کا ایمان، کیونکہ جب پرستی کی جاتی ہے تو خدا کا تخت لگ جاتا ہے۔ کس کا تخت لگتا ہے؟ اور اگر خدا کا تخت آپ کا ایمان ہے کہ لگا ہوا ہے تو بڑے دھیان سے، بڑے خیال سے خدا کے کلام کو سننا بھی ہے، کیونکہ خدا کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے اور ہم سب نے اقرار کیا کہ خدا یہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب نبوکدنصر
इतनी सोने की मूर्त बनवाई, और अगर हम देखते हैं कि जिसकी लंबाई कितनी बताई गई, 60 हाथ। कितने हाथ? 60 हाथ। आपको ये पता है कि पुराने वक्तों में जब क्या है कि पैमाइश की जाती, ये हाथ नहीं है, हाथ यहाँ तक, ये कोनी तक, ठीक है, आपके इतने क्या है कि इसको हाथ माना जाता है, और इससे क्या है कि पैमाइश की जाती थी। जब भी क्या है कि कोई भी चीज बनाई जाती थी तो क्या है कि इस जगह से लेकर क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है कि इसको हाथ कहा जाता है, ठीक है, इसकी पैमाइश की जाती है। और 60 हाथ इतनी बड़ी क्या है कि सोने की मूर्ति, आम मूर्ति नहीं बल्कि कौन सी मूर्ति थी? सोने की, गोल्ड। आज के दौर में कितना कीमती है सोना, ठीक है। और लोग बस अगर थोड़ा सा भी होता है तो कहते हैं कि ये बहुत कीमती, अगर कहीं गिर जाता है। हमने एक स्टोरी भी सुनी हुई है कि एक खातून की क्या है कि घर में क्या है कि पता नहीं बाली गिर जाती, या सिक्का, तरह तरह से तमसीलें हैं, ठीक है, सिक्का भी है, बाली भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जिसके बारे में बयान किया। तो उसने क्या है कि घर में तलाश किया, और उसके बाद घर में नहीं मिला तो बाहर जाके तलाश करना शुरू किया। ये जीसस क्राइस्ट ने क्या है कि तमसील बयान की। और आज ये जो क्या है कि स्टोरी हम सीखने वाले हैं, इसको बड़े गौर से क्या है कि सुनना और समझना है, ताकि हम सीखेंगे। वो 3 लोग जो थे उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा, और हम आज क्या है कि थोड़ी सी क्या तकलीफ आती है तो हम फटाफट यीशु को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि बाद में देखेंगे, पहले हम अपना मामला बेहतर करें। कहीं फला हमारा ऑफिसर, फला हमारा रिश्तेदार, फला वो शख्स, फला वो ठेकेदार, फला कोई भी एनीवन XYZ वो नाराज हो जाए, बाद में हम क्या है कि खुदा को भी मना लेंगे, हमारा ईमान इस तरह का। लेकिन यहाँ पर देखें बयान किया जाता है कि जिस मूर्त की लंबाई क्या है कि 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, उसे क्या है कि दुराए के मैदान में क्या है कि सूबा बाबुल में नस्ब किया गया। कौन से सूबे में? सूबा बाबुल। द टावर ऑफ बैबलन की आपको क्या है कि बाबुल के बुर्ज के बारे में आपको पता है तो वो क्या था। लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये नहीं कि हम बाबुल के बुर्ज के बारे में बात करें। हमने आज ये सीखना है कि जब ये बताया गया, बयान किया गया कि क्या करना है, कि मूरत को जब नस्ब किया गया तो बादशाह को क्या है कि मुकादा तौर पर इसके लिए सबसे पहले तो तैयार किया गया। बादशाह को चंद लोगों ने क्या किया, आके कहा कि तू ऐसा कर। अगर तू बादशाह तो चेक तो कर के कितने लोग तुझसे डरते हैं। एक इंसान है, बादशाह है, लोगों ने आकर चंद लोगों ने कहा कि तू चेक करके कितने लोग तेरी बात मानते हैं। तो बादशाह ने तब ये इस तरह का सिलसिला तैयार किया। हम देखते हैं कि कितने भी लोग थे, चाहे क्या है कि देखिएगा गौर से, तब नुक्ते नजर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और बशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें, ताकि वो सब उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हो। किसकी तकदीस पर? मूरत की तकदीस पर। कौन सी मूरत? जो कि बादशाह ने बनवाई थी। मूरत कौन सी थी? सोने की। सोने की मूरत। और मूरत कौन किसकी बनी थी? बादशाह की सूरत में बनी थी। बादशाह की मूर्ति थी जिस पर सजदा करना था। और क्या है कि बयान ये किया जाता है कि तब एक मनाद कौन होता है? जो कि क्या करता है? मनादी करता है। क्या करता है? मनादी। एक बंदा ऐसा मुकर्रर किया गया जिसने क्या है कि ढोल क्या है कि बजवाया और लोगों को जाकर क्या है कि ऐलान कर दिया कि बादशाह को ये जारी हुआ है कि जब तुम क्या है कि आवाज सुनोगे तो तुम लोगों ने क्या करना है? जाके उस मूरत पर आगे क्या है? गिर कर सिजदा करना है। और जो सिजदा नहीं करेंगे उनके साथ क्या किया जाएगा? उनको आग की जलती हुई मिट्टी में डाला जाएगा। तो क्या हुआ? हम देखते हैं कि सबने जब आवाज सुनी, अगली 7 आयत हम देखते हैं, इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने गिरना, ओरने और सितार और रुबाब और बरबत और हर तरह के साज के बात सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों, देखिए सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूवत नजर बादशाह ने नस्ब किया था, गिरकर
सिजदा किया, सबने सिजदा किया। क्या था? डर था कि कहीं बादशाह हमें उस आग की जलती भट्टी में फेंक ना दे। अब आगे हम देखते जाकर तो क्या होता है, अगर इसी चैप्टर में हम देखते तीसरे बाब की 17वीं आयत में, तो वहां पर क्या है कि सदरक, मीशक और अब्दुलनगो, कितने लोग हैं? सदरक, मीशक और अब्दुलनगो। सदरक, मीशक और अब्दुलनगो, जो सीखने की बात है। कितने लोग हैं? 3 है। क्या क्या नाम है? सदरक, मीशक और अब्दुलनगो। अच्छा, ये तो आप सबको याद है, गीत भी सुना हुआ, सदरक, मीशक, अब्दुलनगो। अब यहाँ पर मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, सब होशियार है, सब सुनिए। मुझे ये बताया कि सदरक, मीशक, अब्दुलनगो का रियल नाम क्या था, असली नाम पता आप लोग को? सिर्फ यही सा सदरक, मीशक, अब्दुलनगो शुरू से सुनते जा रहे हैं। सदरक, मीशक, अब्दुलनगो, किसी को नहीं पता। मुझे अंदाजा था इस चीज का। चैप्टर 1 पे आइएगा, देखें कोई पूछ ही लेता आपको, ठीक है? चैप्टर 1 पे इसी पे आ जाए आप, और क्या है कि आपको इसके बारे में सीखने की जरूरत है। पहला बाब, उसकी अगर आप गौर से देखिएगा, पढ़िएगा चैप्टर 1, और इस पे क्या है कि और 7वीं आयत में देखो, पढ़िए। ख्वाजा सराउं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेलशस्सर और हनन्याह को सदरक और मिसाएल को मीशक और इज़राइल को अब्दुलनगो कहा। अब क्या है कि 4 लोग, दानियाल में, क्योंकि मैंने इससे जिक्र नहीं किया कि दानियाल क्या है कि एक बहुत बड़े मनसब पर था। अगर आगे हम जाकर पढ़ते हैं कि यही नबूकदनेस्सर बादशाह क्या है कि दानियाल के आगे झुककर सिजदा भी करता हुआ नजर आ रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताना चाह रहा। आप घर जाके इस क्या है कि बुक को पढ़ना शुरू करें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दानियाल को खुदा ने इनके साथ रखा हुआ था। ये भी ईमानदार खुदा के लोग थे। और एक जगह में नजर आता है कि दानियाल क्या है कि जब उसको ख्वाब क्या है कि बताया जाता है, तो दानियाल अपने साथी को जाके कहता है कि तुम लोग क्या करो, मेरे साथ मिलकर तुम भी खुदा से दुआ करो। क्या करो? दुआ करो, दुआ करो। यहाँ पर ये चारों लोग ही बड़े ही क्या है कि रास्ता थे, लेकिन दानियाल इनके साथ अभी वहां पर नहीं है वहीं है, लेकिन वो कहाँ बैठा हुआ? बादशाह के साथ बैठा हुआ, तख्त पर, उधर ऊपर मंसब पे, क्योंकि बादशाह के काम की तबीयत दानियाल यहाँ पर कर चुका है। अब चैप्टर 3 में एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि क्या है कि मूर्ति को सिजदा करना है, और बादशाह के सामने इन लोगों को पेश कर दिया गया। किसको? मैंने जिनके नाम बयान किए, याद रखने आपने, कौन कौन सा नाम है? हनन्याह, मिसाएल और उजरिया। हनन्याह, मिसाएल और उजरिया, रियल नेम इनके ये। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ख्वाजा साहब ने जो सरदार था, उसने इनके नाम अपने क्या तौर तरीके के हिसाब से चेंज कर दिया। उसने बुत मजहब के नाम इनके रख दिए। दानियाल का नाम भी बेलशस्सर रखा। दानियाल का नाम क्या रखा? बेलशस्सर। और हनन्याह, मिसाएल और उजरिया, ये सदरक, मीशक और अब्दुलनगो, ये आप जब पढ़े इसमें तो पहले बाब की 7वीं आयत में आप इसको देख सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो यहाँ पर देखें, यहाँ 7वीं आयत में ये बयान कर रहे हैं किस बाब की, वो बादशाह को कहते हैं क्या? सबने सिजदा किया, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? इनका सेंटेंस चेंज है, इनका जवाब बड़ा चेंज है। आज जो कि हमें सीखना है, मेरा मतलब यही है कि हम इसको सीखें। 17वीं आयत को, ये पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ा गया था पीछे से, ताकि आपको पता चले कि स्टोरी असल में है क्या, कहानी है क्या, कि सबने सिजदा किया। और हर किस्म के क्या है कि काजी भी आए, गुजारची भी आए, समझ के वज़ीर आज़म से लेकर सारे लोग आ गए बादशाह के सामने, तो सबने सजदा कर लिया। और कह रहे उम्मतों ने भी सजदा किया, तरह तरह के ज़बानें बोलने, वहां पे किसी को क्या है कि कोई तफरीक नहीं गई, जितने भी उस मुल्क में मौजूद थे सबने गिरकर सजदा किया। किस वजह से? कोई आग की भट्टी में डाला ना जा और मरे ना, सबको अपनी मौत की पड़ी कि हम बच जाए। यहाँ पर ये 3 लोग डिफरेंट है। देखें क्या कहते हैं, बस सुनिएगा गौर से। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। क्या कह रहे हैं? पहला जवाब क्या है? देख हमारा खुदा
جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم بھی آج یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. ہلیلویا. ایمان ابھی بڑھے گا. ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے نا کہ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم بھی کس لیے یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے جمع. ایمان ابھی آپ نے رکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور ہم کیا کرتے ہیں. سنیے گا. ہم کو آگ کی جلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہلیلویا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کو. یہ نہیں اس نے کہا کہ مجھ کو. تینوں ایک ہی ہیں. ہم ایمان سے ڈاواڈول نہیں ہوئے. ایک دوسرے اس نے کہا کہ یار بادشاہ سے معافی مانگ لو یا ایسا کر لو. میں کیا کہ ہم کو آگ کی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کیا ہے؟ قدرت والا ہے. گاتے ہیں میرا رب یہوہ ہے جو کیا ہے؟ قدرت والا. گاتے ہیں ایمان بھی رکھنا. کیا کہہ رہے ہیں کہ قدرت رکھتا ہے. کس چیز سے؟ آگ کی جلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اے بادشاہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. غور سے سنیے گا بیٹا, ادھر دھیان دو. اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کے جملے میں خوف نظر آ رہا ہے؟ ان کے جواب کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں. کہہ رہے ہیں اے بادشاہ, مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, کسی سے کہلوا نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے. کس کے ہاتھ سے؟ تیرے ہاتھ سے. وہ بادشاہ کی غلامی میں ہے, بادشاہ کے حضور میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہم کو کیا کرے گا؟ تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. یہ ہے ایمان. ہمیں بھی یہ ایمان رکھنا ہے. جب ہم یہ ایمان رکھیں گے تو پھر کیا ہے کہ جو گا رہے ہیں کہ میں نہیں کر رہا, میرا نام ہے خدا, تو اس میں مضبوطی ہے. صرف گانے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل بھی کرنا ہے. اور عمل کب ہوگا؟ جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے. صرف کہتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہے. روزانہ میں ہمارے باپ پڑھتے کہ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. کہنے سے کچھ نہیں ہے, پاک کرنا بھی ہے خدا کے نام. جب ہم خدا کے نام کو پاک مانیں گے, اس کو جانیں گے, اور خدا ہی ہے وار کی کتاب اس کی 21ویں باب کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہوں, تم بھی کیا کرو؟ پاک بنو. خدا کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہوں اور تم بھی کیا کرو؟ جب ہم دعائیا زندگی اختیار کریں, جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم صدرک میثق اور ابدالنجوم کی طرح, ان کی طرح صدرک میثق اور ابدالنجوم کی طرح کہنے والے ہوں گے اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں کریں گے. پوری دنیا دیکھ رہے ہوگی وہاں لوگوں کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے, کہہ رہے کہ ہم نہیں کریں گے. سب نے کہا کہ گر گئے, پوجا کر دی, جھک گئے, اور کہہ رہے کہ ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے. بڑے حوصلے کی بات. خدا ان کے ساتھ ہے اور خدا کا نام وہ لے رہے ہیں. نہیں کریں گے. اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ سجدہ ہی نہیں کریں گے. اقرار بھی کریں گے ہم نے سجدہ نہیں کرنا. آگے بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں غور کیجئے. 24ویں آیت میں دیکھیے بادشاہ نے کیا حکم دیا. پہلے 19ویں آیت میں رہیں گے تب بادشاہ قہر سے بھر گیا. کس سے بھر گیا؟ غصے میں آ گئی. یہ کیسے لوگ ہیں کہ سب نے سجدہ کر دی, یہ تین الگ ہے. قہر سے بھر گیا. بادشاہ تھا, عام بندہ نہیں, بادشاہ, اور بہت خطرناک بادشاہ تھا. رحم نہیں کرتے تھے کسی پہ. پیچھے جب خواب کی بات کرتے ہیں تو بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کہہ دیتے کہ ان کو مار دو. جن کو خواب دینے میں میں خواب نہیں بتاؤں گا, تم بتاؤ میرا خواب کیا ہے, اس کی تعبیر بھی بتاؤ. اب ایسے ہو سکتا ہے کبھی کہ کسی کو آپ بعد دن اپنا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا, آپ ڈاکٹر ہو, آپ میری کیا کرو بیماری کا پتہ بھی چلاؤ اور مجھے کیا کرو دوائی بھی دو. تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ یہ پاگل بندہ یہ میرے پاس. اب بادشاہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تم لوگ میرے خواب کو بتاؤ گے بھی اور اس کی تعبیر بھی کرو گے. اب یہاں پہ سلسلہ چینج ہو چکا ہے. یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ہم نے تیری مورتی کی سجدہ نہیں کرنا. بادشاہ کیا آ گیا ہے؟ غصے میں آ گیا ہے. اب جب غصے میں آ گیا تو اس نے کیا کیا ہے غور کیجئے گا. بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ کے چہرہ کیا ہے کہ بہت غصے سے کیا ہے کہ قہر سے بھر گیا, اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میثق اور ابدالنجوم کو مبدل ہوا. اور اس نے حکم دیا کہ بٹی کی
आंच, गौर से सुनिएगा, भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। भट्टी की आंच कितने गुना करती है ज्यादा? अब आगे होता क्या सुनिएगा। जब 7 गुना आंच बढ़ा दी गई तो जो लोग इनको फेंकने के लिए मुकर्रर किए गए तो उनके साथ क्या हो? जो फेंकने जा रहे उनके साथ हुआ क्या और जिनको फेंका गया उनके साथ क्या हो? ये सीखने की बात। गौर से सुनिएगा। मैं बाइबल इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर इसलिए रहा तो कोई एक संगे सर पता नहीं अपने पास से बताते जा रहे। इधर से पढ़ के बयान कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है और कैसे कैसे मोजज़ात से हमारी बाइबल भरी भरी पड़ी है और हमारा ईमान अभी भी वैसे के वैसे। देखिए क्या लिखा हुआ। उसने अपने लश्कर के चंद जोर और पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबूनजूद को बांध कर आग की जलती हुई भट्टी में डाल दें। बांध कर कैसे डाला गया? बांध कर डाल दिया। आगे बढ़िए। तब ये मर्द अपने जेर जामों कमीजों और इमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। जी बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अबूनजूद को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। हालेलुया हालेलुया। वो सारे हलाक हो गए, लेकिन ये 3 लोग हलाक नहीं हुए। इनको बांधा भी हुआ था लेकिन ये नहीं हलाक हुए, वो हलाक हो गए जिन्होंने उनको उठाकर वहां पर मर गए। ये नहीं मरे। आगे बढ़ो। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मीसक और अबूनजूद बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अराकीन दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बुलवा कर आग में नहीं डुबाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले पड़े हुए देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा और चौथे की सूरत इल्ला ज़्यादा ज्यादा की सी है। हालेलुया हालेलुया। ये है हमारे खुदा के खुदा के वास्ते। हम सुनेंगे बादशाह सरासीमा हो गया, पसीने से भर गया, देख रहा खड़ा हो गया। फिर बादशाह 5 को क्या जरूरत पड़ी है खड़ा हो? वो तब तक बैठा हुआ भी हुक्म दे सकता है कि ये करो वो करो, लेकिन बादशाह सरासीमा हो गया। वो खड़ा होकर कह रहा है कि क्या उस पूछ रहा है क्या कि कितने लोगों को 3 को नहीं फेंका गया था? कितने को? 3 को। तो मुझे 4 क्यों उसमें चलते हुए नजर आ रहे हैं? उनको बांधा हुआ था, वो चल रहे हैं। किसने खोल दिया उनको बात? कह रहे कि इला ज़्यादा खुदावंद यीशु से खुद उनके दरमियान में चला गया। उससे कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे क्या के नाम से इकट्ठे तो वहां पे क्या होगा? मैं वहां पे भी उसके नाम से वो इकट्ठे हुए, वो वहां पर उसने कहा देखो मैं 4 शख्स आग में खुले कैसे खुले फिरते देखता हूँ, बांधे हुए को खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं। ये कौन गवाही दे रहा है? बादशाह। उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा और चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। देखें ये हमारे खुदा की कुदरत। सदरक मीसक और अब्दुल-नजूद जिनके नाम मैंने रियल नेम आपको बताए हैं, ननिया मिसाइल और उजरिया, याद रखना आपने। ये खुदा के लोग थे। हमारे लिए एक क्या है कि बहुत बड़ी गवाही है। जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कहने सहा, उस वक्त यीशु मसीह उनके लिए पहुंच गया। आज यीशु मसीह हमारे लिए हर जगह पर पहुंच जाता है। देखें बेटे शान के लिए भी यीशु मसीह पहुंचा। देखें वो बचा हुआ है। ये गैर नाम के लिए बहुत बड़ी गवाही है। जब हम क्या है कि हर अपनी बुरी रविश से बाज आ जाएंगे तो यीशु मसीह हर जगह पर हमारे लिए पहुंच जाएगा। हम मर नहीं जाएंगे अगर हम कोई बुरा काम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दें यार वो बुरा काम जो कि यीशु को पसंद नहीं है, कभी नहीं कुछ भी हो। ईमान रखे। लिखा है कि रात समाज की दुआ से शहर क्या पाएगा? खुदा राज्य पाक